Good evening, everyone. Good evening, Rubina. Good evening, Sakshi. Good evening, Deepti. Good evening, sir. Can you sir? I am perfectly fine. How are you doing, all of you? I'm very fine. I'm fine, sir. How are you? I'm perfectly fine. Thank you for asking. So, today is the final day. That's the day that marks the end of our today's session. But of course, we are not going to do that at the very beginning. I'm going to talk about it later at the end. But yes, since it's the last day, I would really want you all to participate in an intensive way and to talk a lot in today's session. Are you all up for it? Are you all ready for it? Yes, sir. Yes? Okay. Yes, sir. Great, great, wonderful. So we are still left with few topics. I can see Pranjal, so I'll just quickly greet her. Good evening, Pranjal. How are you doing? Good evening, sir. You're doing fine. You are doing great. You are doing fantastic. What are you doing? How are you doing? I'm doing good. I'm doing really good. Wonderful. All right, so we'll quickly move ahead because I have few topics to share, not a lot of topics. We've got just two more topics to do. And then, as Rubina said to me yesterday, that, sir, could you just run through once with all the, what were we going to run through? The modal verbs, right? So we'll run through all the modal verbs once. And then in the end, I'll open the session for your story and some activities that I have for you for the day. All right, so before that, we'll just quickly move ahead with something that I have planned for you, and it is conjunctions. Now, does anyone know what does that mean, conjunctions? क्या होते हैं conjunctions? क्या इनका purpose होता है? Anyone? दो सेंटेंस के बीच में लिख Yes, absolutely. Words joining two sentences. Perfect, Rubina. Words joining two sentences. दो sentences के जो parts होते हैं, right? उनको ये साथ में लेके आते हैं. So words joining two sentences से बेहतर मैं लिखूं clauses. Two clauses. क्योंकि सेंटेंस अपने आप में पूर्ण होता है, तो दो सेंटेंस को नहीं जोड़ रहे, ये दो क्लॉजेस को जोड़ रहे हैं, राइट? हम देखते हैं इसमें तीन प्रकार की वैरायटी होती है. एक होती है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, हमको नाम में इतना टेंशन में नहीं आना. एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को मैं सी लिख लेता हूं यहाँ पे, कंजंक्शन को सी करके हम बोल लेते हैं. सेकंड होता है हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग. नाम में मत टेंशन लीजिएगा, नो वन, डोंट वरी. मीनिंग बताता हूं मैं आपको और फिर आगे बढ़ जाएंगे. और तीसरी जो हमारे पास कैटेगरी है वो मैं आपको बताता हूं. दिस वन इज wherein we see that there is some kind of, I'll just let you know, right? So the third one is correlative conjunctions. So correlative conjunction. अब ये कैसे काम में आते हैं, I'll tell you. I'm sure आप इन शब्दों को जानते हैं, आपने इन शब्दों को ऑलरेडी देखा हुआ है. बट होता क्या है कि जब हम इनको टेक्निकली वापस से समझने का प्रयास करते हैं तो हमें लगता है कि these terms are little intimidating for us. हमारे को लगता है टर्म्स पता नहीं कौन सी हैं, क्या है. सो हम इन पे चालू करते हैं, इनके ऊपर डिस्कशन करते हैं. सो द फर्स्ट वन, एज यू सी इट इज, इसका बड़ा हमने सिंपल सा नाम दिया है फैन बॉयज. FANBOYS, फैन बॉयज. इससे हमें वो शब्द पकड़ में आ जाएंगे. F से हो जाएगा फॉर, राइट? A से हो जाएगा एंड. N से एनी गेसेस, क्या हो जाएगा N से? नॉर. बट. O से हो जाएगा और, येट एंड सो. ये शब्द आपने देखे हुए हैं, दीप्ति, रुबिना, यू हैव ऑलरेडी सीन दीज वर्ड्स, राइट? फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो. ये जो फॉर है, ये वो फॉर नहीं है, ये प्रपोजिशन वाला फॉर नहीं है. दिस इज फॉर यू, ये तुम्हारे लिए, ये वाला फॉर नहीं है, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा, इट्स नॉट द सेम वन. वो वाला फॉर अलग था, ये फॉर एक रीजन के हिसाब से आता है, फॉर. ओके, आगे हम देखते हैं. पहले इसी को समझ लेते हैं, फिर हम इस पे जाएंगे. यहाँ हम एक काम करते हैं, लिख लेते हैं एक बार सारे, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. लिख लेते हैं हम सारे एक बार, उससे आपको आइडिया भी रहेगा. ऑलराइट, नेक्स्ट. because although since and we have two more, I'll just quickly write them down for you on the board. If and when. If
and when. I can see Sarita and I can see Arbaz. Good evening, Sarita. Good evening, Arbaz. How are you doing? Good evening, sir. I am fine. Okay, great. So we have just started a new topic, Arbaz and Sarita. It's called conjunctions. So conjunctions हमें रुबिना ने बताया कि वो शब्द होते हैं जो दो क्लॉजेस को जोड़ते हैं, राइट? दो हिस्से होते हैं, उनको जोड़ने के लिए हमें कंजंक्शंस की आवश्यकता होती है. तीन तरीके के कंजंक्शंस होते हैं. नाम से ज्यादा घबराना नहीं हमारे को. एक होते हैं कोऑर्डिनेटिंग, एक होते हैं सबऑर्डिनेटिंग और एक होते हैं कोरिलेटिव. ठीक है, नाम कुछ भी हो, ज्यादा परेशान नहीं होना आपको. आपको कोऑर्डिनेटिंग वाले में ध्यान रखना है कि वो जो दो हिस्सों में कोऑर्डिनेशन बिठाएंगे ना दीप्ति, वो वाले शब्दों को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. उसमें क्या क्या आते हैं? फैन बॉयज. फैन बॉयज करके हम याद कर लेते हैं. फैन बॉयज. सो एफ से क्या हो गया रुबिना? एफ से हाँ, एफ फॉर हाँ, एफ फॉर फिश पढ़ते थे ना बचपन में. अब एफ फॉर क्या हो गया? फॉर. ओके, सो एफ से फॉर हो गया. ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट एंड एस से सो. राइट? मीनिंग समझ में आता है आपको इन सभी के? फॉर मैं सेंटेंसेस करवाऊंगा ना तो आपको और क्लियर होगा. अभी सिर्फ इनको समझ लेते हैं कि ये या अरबाज यू सेइंग समथिंग? सॉरी, नो आई अच्छा, नॉर ना ही, ना ही, ना तो वो ये लिखता है ना ही वो लिखता है. नॉर, राइट? एड ऑन की तरह होगा. मैं वाक्य बना के दिखाऊंगा आपको इन सातों पे, तब आपको और क्लैरिटी होगी. फिलहाल इन शब्दों को याद रखिएगा फैन बॉयज के रूप से दीप्ति. और हमने बात की सबऑर्डिनेटिंग. सबऑर्डिनेटिंग में क्या होगा कि एक रिलेशनशिप आता है समय का, टाइम का, और जो कॉन्ट्रास्ट है, कंडीशन है. तो बिकॉज हो गया इसमें, ऑल्दो हो गया, सिंस हो गया, और इफ हो गया, व्हेन हो गया. आई विल गेट यू सम सेंटेंसेस. और लास्ट में हमारे पास एक और कैटेगरी, इसको बोलते हैं कोरिलेटिव. कोरिलेटिव में दोनों के अंदर कनेक्शन समझ में आता है एक दूसरे से. ईदर और, नीदर नॉर. ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो. नॉट ओनली बट ऑल्सो. ये तीन आप याद रखना, ये आपका काम हो जाएगा. ईदर और, या तो ये या वो, ना ही ये ना वो, और ना केवल बल्कि. ना केवल बल्कि, राइट? हिंदी में बोलते हैं ना, ना केवल ये बल्कि ये भी. तो वो हमें पता चल जाएगा इससे. अब एक काम करते हैं, हम डिटेल में इसको समझते हैं, फटाफट से सेंटेंसेस बनाते हैं. तो हम पहला वाला उठाते हैं आपके लिए. ओके, सो द फर्स्ट वन वाज, फर्स्ट वन में हमारे पास क्या क्या थे? फैन बॉयज. एफ ए एन बी ओ वाई एस. एक एक वाक्य लिखते हैं और समझते हैं कि क्या है. फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट एंड सो. अब मैं वाक्य लिखता हूं आपके लिए अंग्रेजी में, आप मुझे बताइएगा कि आपको मीनिंग क्लियर है क्या, आप कॉन्टेक्स्ट समझ पाते हैं क्या. सो ये वाला मैं लिखता हूं आपके लिए. आई वॉज टायर्ड. आई वॉज टायर्ड, राइट? आपको आई होप समझ में आता होगा. For I had worked a lot. मैं इसको थोड़ा सा इधर खिसकाता हूँ स्क्रीन को. For I had worked a lot. मेरे पास सारे वाक्य लिख रहा हूँ, तब तक आप दिमाग लगाइए इनका अंग्रेजी में जो है वाक्यों का अनुवाद कीजिए हिंदी में, आप समझने का प्रयास कीजिए. मैं एक बार लिख लेता हूँ. ओके, अगला सेंटेंस है मेरा नॉर का. ओके, आई थिंक इसको मैं इस तरीके से. ओके, आगे हम बढ़ते हैं. ऑलराइट, इसको देख लीजिए, स्क्रीन पे लिखा हुआ है. There's someone. Okay.
ओके नेक्स्ट मैं लिखता हूं आपके लिए कृष्ण मान्यू गुड इवनिंग ओके ऑलराइट चलिए सो मैं थोड़ा सा स्क्रीन को इधर खिसकाता हूं ताकि आपको दिख जाए और मैं फटाफट से आपको 2 मिनट दे रहा हूं 2 मिनट में आप मुझे इनके मीनिंग क्या होते हैं हिंदी के अंदर आप ये पूरा जो सेंटेंस है उसका आप सेंस बनाइए और फिर आप मुझे बताइए कि क्या कहना चाह रहे हैं हम आई कैन सी कृष्ण मन्यू गुड इवनिंग कृष्ण मन्यू हाउ आर यू डूइंग Good evening, sir. I'm fine. How are you? आई एम परफेक्टली फाइन थैंक यू हाउ इज योर हेल्थ नाउ यू आर बेटर Yes, sir. ओके ग्रेट सो पहला वाक्य कौन बताना चाहेगा हाथ रेस कीजिए फटाफट से I was tired for I had worked a lot. दीप्ति आप बताइए क्या मतलब है इस वाक्य का I was tired or I had worked lot. मैं बहुत थक जाती हूँ जब मैं ज्यादा काम करती हूँ। तो जब का तो मतलब है ही नहीं यहाँ पे फॉर का क्या सेंस है और लिए फॉर मतलब क्योंकि हाँ कारण बता रहे हैं हम एग्जैक्टली रुबिना यू वांट टू ट्राई yes बताइए मैं बहुत थक गई थी इसीलिए मुझे बहुत काम करना पड़ेगा। नहीं 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 सर फोर का मतलब यहाँ पे तो प्रीपोजिशन है ना सर हाँ यहाँ पे फॉर जो वो प्रीपोजिशन की तरह काम नहीं कर रहा यहाँ पे वो कंजंक्शन की तरह हाँ क्योंकि मैंने ज्यादा काम किया। वेरी गुड क्योंकि ये क्योंकि की तरह काम कर रहा है राइट क्योंकि की तरह काम कर रहा है मैं थका था या मैं थकी हुई थी फॉर फॉर आपका रीजन बता रहा है अरबाज फॉर आई हैड वर्कड अ लॉट राइट तो ये भी एक तरीका होता है अपना रीजन बताने का फॉर के साथ लेकिन पहले हम रुबिना अपना स्टेटस बताते हैं कि क्या हुआ क्यों हुआ इस कारण से हुआ फॉर समझ में आ रहा है आपको यस सर। हाँ तो फॉर ये जो रीजन है ना थके थके हो जाने का थकने का ये कारण है इस कारण से तो ये पहले होता है ये पहले होगा इस कारण से मैं थक गया सो आई वॉज टायर्ड फॉर आई हैड वर्कड अ लॉट मैं अंग्रेजी में सफल हो पाया फॉर आई हैड वर्कड अ लॉट आई पास्ड द एग्जाम फॉर आई हैड वर्कड वेरी हार्ड समझ में आता है सभी को यस सर। तो ये फॉर थोड़ा सा आप सही कह रहे हैं सब लोग कि थोड़ा सा अटपटा सा है हमने इसको सीखा ही नहीं इतना तो लेकिन आप ध्यान रखिए कभी आपको मिले ऐसा फॉर तो आप इसको के लिए मत सोचना इट इज फॉर यू ये तुम्हारे लिए ना ये वाला ये जो अभी अरबाज ने कहा ये प्रपोजिशन नहीं है ना ये क्या है कंजंक्शन है ये दो वाक्यों के हिस्सों को जोड़ के एक नया वाक्य बनाता है ठीक है एवरीवन ओके साक्षी सरिता ये फाइन प्रांजल चलिए नेक्स्ट वन प्रांजल आप बताइए एंड वाला She likes coffee and tea. उसे और चाय बहुत पसंद है। बिल्कुल ठीक है तो बड़ा सिंपल सा है एंड हम लोग सब यूज करते हैं ना एंड आई वांट टू ईट दिस एंड दैट आई वांट टू ईट पिज्जा एंड पास्ता तो एंड लगाते हैं हम रुबिना दीप्ति क्लियर है आपको एंड तो बड़ा सिंपल है ना चलिए नॉर नॉर देख लेते हैं एक बार हु वांट्स टू ट्राई रेज योर हैंड साक्षी यू वुड लाइक टू ट्राई नॉर Yes sir. बताइए He doesn't play football nor does he watch it. हाँ क्या वह ना तो फुटबॉल खेल पाया और ना ही देख पाया। एग्जैक्टली ही डजंट प्ले फुटबॉल पहली बात क्या होती है नॉर्मल वे में बोलते हैं हम ही डजंट प्ले फुटबॉल फिर हम कोई और बात हमें याद आती है कहते कहते वो भी नकारात्मक ही है तो हम नॉर लगा देते हैं ही डजंट प्ले फुटबॉल नॉर डज ही वॉच इट ना तो फुटबॉल खेलता है और ना ही उसे देखता है राइट तो इस तरीके से चलेगा नॉर ये सिर्फ नॉर अकेला चला आप आगे देखोगे कि मैं नीदर और नॉर भी चलाऊंगा अभी देखना पीछे
नीदर और नॉर, ये वाला दिखा नीदर और नॉर, ये भी चलेगा। इस केस में इतना सा फर्क है रुबिना कि नीदर एंड नॉर में यू ऑलरेडी नो ऐसा भी नहीं होता और ऐसा भी नहीं होता, बट फर्क क्या है इस वाले में, व्हेन यू टॉक अबाउट दिस वन, इसमें आप पहले हिस्से में नीदर के साथ स्ट्रेस नहीं डाल रहे हो, आप सिंपली बोलो ही डजंट प्ले फुटबॉल, उसे फुटबॉल वो नहीं देखता है, वो फुटबॉल नहीं खेलता और ना ही वो देखता है उसे नॉर। सो यहाँ पे सॉफ्टवेयर वे में आप आगे बढ़ते हो, बट व्हेन इट इज वेरी श्योर दैट यू टोटली श्योर, यू वुड से नीदर एंड नॉर, ना ही वो ये करता है ना ही वो करता है, इस तरीके से, राइट। ओके अरबाज आप बताइए बट के लिए हम क्या यूज करते हैं, कैसा है सेंटेंस बताइए। मैं जाना चाहता हाँ हाँ हाँ, लेकिन मैं जा नहीं सका, जा नहीं पाया, अंग्रेजी में पढ़ दीजिए इसको अरबाज। I wanted to go but I couldn't. वेरी गुड, आई वांटेड टू गो बट आई कुडंट, बट लगाने का मतलब भी ऑपोजिट आप अपनी बात रखेंगे, एंड दैट्स अगेन अ कंजंक्शन, परफेक्ट। आई कैन सी मानशी, गुड इवनिंग मानशी, हाउ आर यू डूइंग? Okay, great, wonderful. I'm perfectly fine, Manshi. Thank you for asking. All right, I see Deepti. Deepti, you want to say something on but, or you want to do the next one? Next one. हाँ चलिए बताइए दीप्ति। Do you want tea or coffee? Coffee चाहिए या चाय? हाँ या हिंदी में मतलब या, तुम्हें ये खाना है या वो खाना है, तुम्हें चाय चाहिए या कॉफी चाहिए, या बिल्कुल ठीक है। लेट्स आस्क सरिता। सरिता आप येट का ट्राई करेंगे, येट, येट, सरिता पढ़िए। He was tired. Tired. It, He was tired. सर आगे का मुझे दिखाई नहीं दे तो रहा। आपको दिख नहीं रहा, मैं एक बार इसको ऊपर नीचे करता हूँ, बताना आपको दिखेगा तो। अभी ठीक है सरिता, दिख रहा है आपको? सर स्क्रीन पूरा क्लियर नहीं दिख रहा है मुझे, जो लिखा हुआ है ना। अच्छा साफ नहीं दिख रही आपको स्क्रीन पर, ये दिख तो रहा है येलो कलर में जो लिखा हुआ है वो दिख रहा है, लेकिन वो क्लियर नहीं दिख रहा। सर कलर दिख रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा है। ओके, आई डोंट नो, मतलब आपको स्क्रीन पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, या आई डोंट गेट व्हाट आर यू टॉकिंग, मतलब आपको क्या नहीं दिख रहा, ये लिखा हुआ नहीं दिख रहा या ये ब्लर्ड दिख रहा है, कैसा दिख रहा है? ऐसा दिख रहा है। आओ चलिए, इतने सवाल पूछे मैंने सरिता से, इन्होंने कहा सर दिखने लगे, अब आप सवाल मत पूछिए मैं पढ़ देती हूँ, बताइए। चलिए पढ़िए सरिता। येट, सर ब्लर जैसा दिख रहा है, स्क्रीन मुझे साफ दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा ब्लर्ड हो रखी है स्क्रीन आपके लिए, सो मे बी इंटरनेट का इश्यू हो सकता है। Yes, sir. तो फिर आप एक बार होल्ड पे रहिएगा, मैं किसी और से पूछता हूँ, ठीक है? चलिए लेट्स आस्क, whom should we ask, कौन ट्राई करेगा? मानसी आप ट्राई करोगे ये वाला येट कैसे काम में लेते हैं? Yes, sir. पढ़िए। He was tired, yet he confident. No, he was tired, yet he continued working. He was tired, Continue. yet he continued working. मतलब क्या वो लगता? थका हुआ है हाँ लेकिन वो अपने काम के लिए कंटिन्यू है। हाँ ठीक है, मतलब मुझे लगा आपको सेंस समझ में आ चुका है। कोई है जो एग्जैक्टली, या साक्षी वांट टू से समथिंग? थका हुआ था क्योंकि उसने लगातार काम किया। वो नहीं सुनिए एक सेकेंड, जो दीप्ति ने कहा ना, सुनिए रुकिए, आंसर नहीं चाहिए, पहले दीप्ति ने जो कहा, दीप्ति आपने जो कहा वो फॉर वाला हो गया, वो फॉर वाला हो गया, क्योंकि आपने ये कहा कि वो थका हुआ था, क्योंकि है ना, फॉर होता है क्योंकि उसका रीजन है ये, ठीक है दीप्ति, हम ये वाला नहीं कह रहे, हम कुछ और कह रहे हैं, वो थका हुआ था। रुबीना बताइए। सर वो थका हुआ था फिर भी वो काम करते जा रहा है। वेरी गुड, फिर भी रुका नहीं, वो समझ में आ गया सभी को, फिर भी। सो ही वाज टायर्ड येट ही कंटिन्यूड वर्किंग, फिर भी वो काम करता रहा। क्लियर है कृष्णमन्यु, सरिता, इज इट ओके? अरबाज चलिए, सो देख लेते हैं हम। कृष्णमन्यु आप ट्राई कीजिए वाला सेंटेंस। यस सर। मुझे देर हो गई थी इसलिए मेरी बस छूट गई। हाँ, आई वॉज लेट, मैं लेट था, सो आई मिस द बस, इसलिए मेरी बस
मिस हो गई, आई मिस द बस। क्लियर है सभी को? तो ये सारे आप वर्ड्स यूज कर सकते हैं टू मेक conjunctions and clauses which are separate but you connect them together. क्लियर है अरबाज? समझ में आ रहा है दीप्ति, प्रांजल, ऑल वेल, सरिता, समझ में आ गया? फैन बॉयज एक हो गई हमारी पहली कैटेगरी फैन बॉयज की, राइट? ये फॉर वाला थोड़ा सा ट्रिकी है पर ये बड़ा अच्छा है, आप इसको यूज किया कीजिए, अपने स्टेटस वगैरह डालते हैं ना फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे, तो कुछ भी फॉर के साथ एक बात ध्यान रखिएगा, ये दोनों कनेक्टेड होते हैं। अब आप कह सकते हैं सर मैं बिकॉज नहीं लिख सकती क्या, बिकॉज नहीं बोल सकता क्या कि आई वॉज टायर्ड बिकॉज आई हैड वर्कड अ लॉट? आप लिख सकते हो, लेकिन फॉर में क्या होता है, फॉर एकदम सटीक इसकी बात होती है, फॉर इसका सटीक रीजन होता है, यानी मैं क्यों थका हुआ था, क्योंकि मैंने बहुत काम किया था। बिकॉज में कोई भी रीजन हो सकता है, रीजन पता हो नहीं पता हो कोई भी, मैं दिखाऊंगा भी, बिकॉज हमारे सेकंड वाली कैटेगरी में आएगा, तब बिकॉज कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक यही रीजन है इसलिए। सो अगर आप कहना चाहो कि मैं अच्छी अंग्रेजी बोल पाया क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की, आई स्पोक वंडरफुल इंग्लिश फॉर आई हैड वर्कड वेरी हार्ड, आई स्पोक वंडरफुल इंग्लिश फॉर आई हैड वर्कड वेरी हार्ड। क्लियर है सभी को? यस सर। राइट, ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे मैं आपको बताऊंगा वो वाले क्लॉजेस जिसको हमने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहा है। सबऑर्डिनेट, अब नाम से मत परेशान होइएगा प्लीज, नाम कुछ भी हो, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। और उसमें हमने कौन कौन से देखे थे, याद है आपको? मैं दिखा देता हूं एक बार आपको। हमने देखे थे वहां पे, what all did we see? We saw because, although, since, if, when, right? Because, although, since, if, when. So I'll write it down for you. Because, although, since, if and when. अब मैं कुछ वाक्य लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, आप लोग उनका इंग्लिश में मीनिंग भी मतलब ढूंढना कि क्या है वो इंग्लिश के अंदर मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, और फिर उसको हिंदी में आप ट्रांसलेट करेगा। सो थोड़ा सा इधर खिसका देता हूं मैं स्क्रीन को, सो दैट इट्स विजिबल टू यू। ओके, देन और देखते रहिए, अगला मैं आपके लिए बना रहा हूं सिंस का। I think I'll have to work on this one, right? All right, and the last one is दो मिनट लीजिए फटाफट से, I'll respond to someone's I'll get back to your बात। एक बार आप 2 मिनट लीजिए और देखिए कि इसमें हम क्या कहना चाह रहे हैं। Hello, sir. Yeah, you want to say something? Sir, we have been, we have been since childhood. या इसमें मैं एक और इस वाले वाक्य को मैं समझाता हूँ और एक और वाक्य को मैं लिखता हूँ आपके लिए, मैं स्टार लगा के मैं व्हाइट कलर में लिखता हूँ ताकि वो अलग से स्टैंड करे। मैं एक और वाक्य लिख रहा हूँ आपके लिए। आप मुझे बताइएगा कि आपको ये स्क्रीन पे व्हाइट वाला सेंटेंस दिख तो रहा है ना, तो थोड़ा सा वो इम्पोर्टेंट। चलिए अब मैं एक बार पहले आपसे पूछ लेता हूं कि आपने एक बार पढ़ लिया, आपने एक बार दिमाग लगा लिया, तो हम उसको अब आगे करते हैं। ओके, सो पहला बिकॉज, एनीवन हु वांट्स टू ट्राई, हाथ रेस कीजिए।
I stayed home because it was raining. अरबाज बताइए. चलिए अरबाज आपसे चालू करते हैं. अच्छा सरिता से पूछेंगे. अभी दिख रहा है सरिता आपको? स्क्रीन ठीक है? यस सर। तो चलिए पहले अरबाज हम सरिता से पूछते हैं. छूट गया था पिछली बार. या सरिता बताइए. I stayed home. पढ़िए पूरा सेंटेंस. यस सर। हाँ I stayed home because it was raining. हाँ मतलब मैं घर पर रुका क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। एब्सोल्युटली मैं घर पर रही, रुकी, रुका क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी. इट वाज रेनिंग आउटसाइड. राइट. अब यहाँ पे हमें बिकॉज कारण देना था और कारण कोई भी हो सकता था क्योंकि बारिश हो रही थी, क्योंकि गाड़ी नहीं आई थी, कोई भी रीजन होता है. इसका और इसका सीधा सीधा अंडरस्टूड एक्सप्लेनेशन नहीं है कि मैं घर पे रहा, जो भी रीजन रहा होगा इस वजह से. इसलिए फॉर वाले में मैं थका हुआ था या जो भी बात थी, फॉर आई हैड वर्कड अ लॉट, उसमें बहुत डायरेक्ट रिलेशन है. यहाँ पे कोई भी कारण हो सकता था. इट कुड हैव बीन एनी रीजन. दैट्स व्हाई. नेक्स्ट ऑल्दो. हु वांट्स टू ट्राई ऑल्दो? किसको आता है ऑल्दो? मानसी से पूछते हैं. मानसी आप ट्राई कीजिए ऑल्दो. ऑल्दो शी. दिख रहा है आपको मानसी? ऑल्दो शी वाज. ये है ऑल. हाँ ऑल्दो शी वाज. हाँ मतलब मानसी हिंदी में बताइए क्या मतलब है? वो उसने अपना अपने काम को खत्म कर लेती पर वो थकती थी। कर लेती क्यों? कर तो लिया उसने. शी फिनिश्ड. कर लिया उसने अपना काम. उसने अपना काम खत्म कर लिया. ऑल्दो का मतलब कौन बताएगा? अनम्यूट करके बताइए. हालांकि. कितना भारी भरकम शब्द है ना, हालांकि. सो शी फिनिश्ड हर वर्क हालांकि शी वाज टायर्ड. हालांकि समझ में आता है सभी को? हालांकि मतलब हाँ मतलब हालांकि हाल ऐसा था कि जो हाल हाल का, आई डोंट नो हाउ टू ब्रेक दैट वर्ड. आई हैव नो आइडिया अबाउट हालांकि को ब्रेक करे. बट आई थिंक हालांकि मतलब होता है कि जो हालात थे, जो हालत थी, जो स्थिति थी. तो शी फिनिश्ड हर वर्क हालांकि शी वाज टायर्ड. हालांकि वो थकी हुई थी. शी फिनिश्ड हर वर्क. क्लियर है आपको एवरीवन? हालांकि. ओके चलिए सिंस का देखते हैं. वील आस्क whom should I ask? Just a second, let me ask प्रांजल. पहले प्रांजल से पूछते हैं. प्रांजल एक तो ये वाला बता दीजिए पहले और फिर ये वाला अलग व्यक्ति से पूछेंगे. प्रांजल. We've been friends since childhood. हम बचपन से ही दोस्त हैं. हाँ वेरी गुड. हम बचपन से ही दोस्त हैं. बहुत अच्छा बोला. या फिर हम बचपन से ही दोस्त रहे हैं. ऐसे नहीं बोलते कोई हिंदी में रहे हैं. लेकिन ये याद है आपको क्या है? कौन सा टेंस है? We've been friends since childhood. तो इसलिए have been आता है ना, तो हम उसका स्ट्रेच देखते हैं. लेकिन आपको ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है. हम बचपन से ही दोस्त हैं. बिल्कुल ठीक है. तो जो सिंस आया ना, ये समय के कारण आया है अरबाज. इसलिए ये भी हम कंजंक्शन में ले जाते हैं और ये टाइम एलिमेंट को दर्शाता है. और एक और तरीके से सिंस हो सकता है जो बताता है कारण. आप ट्राई कीजिए अरबाज. सिंस वाला सेकंड पढ़िए व्हाइट वाले में जो है. Since it is raining, we will स्टे stay इंडोर्स. indoor. या मतलब जब से बारिश हुई, नहीं नहीं जब से बारिश नहीं हुई, नहीं 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 जब से नहीं है. नहीं नहीं जब से नहीं है. ये वाला था सिंस. बचपन से. ये से नहीं, ये कारण बता रहा है अरबाज. आई डोंट नो. हिंदी में एक शब्द है, मुझे नहीं पता, बहुत कम लोग यूज करते हैं. कोई हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहेगा इसको? साक्षी वांट टू ट्राई दिस थिंग. सिंस इट्स रेनिंग. चूंकि. हाँ चूंकि. चूंकि बारिश हो रही है हम अंदर रहेंगे, हम भीतर रहेंगे. चूंकि बहुत कम यूज करते हैं, बहुत रेयरली यूज करते हैं और लोगों को शायद मीनिंग भी नहीं पता. लेकिन जब शुरुआत में आप कारण बताते हैं ना, तो वो चूंकि से बताते हैं हिंदी में. बिल्कुल सही बात यह है कि आप हिंदी में चूंकि से कारण बताएंगे और क्योंकि बाद में होता है. राइट. तो चूंकि से. चूंकि बारिश हो रही है, लेकिन लोग बोलते हैं, लोग आजकल क्योंकि से भी चालू है. क्योंकि से चालू है, लेकिन क्योंकि हमेशा बाद में आता है. आइडियल फॉर्मेशन ही होता है, बट हिंदी में तो हम कुछ भी ऊपर नीचे चलाते हैं. सो चूंकि बारिश हो रही है, सिंस इट्स रेनिंग वी विल स्टे इनडोर्स. गॉट दैट अरबाज? समझ में आ गया आपको? सिंस. this राइट. ओके. इफ who wants to try if Deepti, you want to try if? Yes, sir. बताइए.
कॉल मी इफ यू नीड एनी हेल्प। मतलब तुम मुझे कॉल करना अगर किसी हेल्प की जरूरत हो। हाँ, अगर बोल दीजिए, यदि बोल दीजिए, यदि अगर, है ना, कोई भी चलेगा। और अंत में when, who wants to try? When anyone? Krishnamanyu, you want to try when? Krishnamanyu, you want to try this one? यस सर। बताइए। I'll come when I मैं finish. आया तो मैंने अपना वर्क तो कंप्लीट कर लिया। I'll come when I finish my work, क्या मतलब है इसका? सर आएगा मतलब मैं आया। I'll come का मतलब क्या होगा? Anyone? I'll come? मैं आऊंगा, फ्यूचर टेंस है जब, when I finish my work, जब मैं अपना काम खत्म कर लेता हूँ, राइट? सो इंग्लिश में हम यही बोलते हैं, when I finish my work I'll come, when I finish, जब मैं अपना काम खत्म कर लूंगा। हिंदी में हम लोग कर लूंगा बोलते हैं, उसको भी हम क्या सोचते हैं एवरीवन, हमें लगता है कि वो इंग्लिश में फ्यूचर टेंस बनेगा, पर गलत है। ध्यान रखिएगा, when के साथ और if के साथ हम कभी भी फ्यूचर टेंस कभी नहीं काम में लेते हैं इंग्लिश में, if के साथ तो कभी नहीं काम में लेंगे। सो when I finish my work, जब मैं अपना काम खत्म कर लूंगा, हिंदी में ऐसे बोलना है, तब मैं आऊंगा। लेकिन अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे रुबिना? I'll come when I finish my work। ध्यान रखिएगा एवरीवन, इज दैट ओके? दीप्ति, राइट? इसमें ध्यान रखिएगा कि आप ये कभी नहीं बोलना है when I will finish my work, दोनों हिस्से में will नहीं चलता है, गड़बड़ अंग्रेजी होगी वो, राइट? तो ध्यान रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब एक लास्ट हमारा एक और रहता है कंजंक्शन, जो मैं आपको फटाफट से बताता हूं। दैट्स कॉल्ड, इफ यू रिमेंबर द नेम दैट वी हैव गिवन टू दिस वन, इज कोरिलेटिव कंजंक्शन। नाम में कुछ नहीं रखा, कोरिलेटिव कंजंक्शंस। इसके अंदर हमारे पास 3 कंडीशंस होती हैं, right? One is, let's see if you remember them well. The first one is either and or. The second one is neither and nor. And the third one is not only but also. Not only but also. मैं कुछ आपके लिए वाक्य बनाता हूँ, आप बताइएगा कि आपको समझ में आते हैं क्या वो वाक्य। ओके, सो पहला वाला है, you can either stay or go. You can either stay or go, ठीक है? दूसरा है आपके लिए, he is neither rich nor famous. He is neither rich nor famous. और अंत में एक वाक्य हमने बनाया है not only but also के साथ, वो है she is not only smart but also hardworking. She is not only smart but also hard working. चलिए देखते हैं आप लोगों को इनके मीनिंग समझ में आते हैं या आप मुझे बता पाएंगे। देखते हैं, चलिए। who can try the first one? You can either stay or go. रुबिना बताइए, you can either stay or go. तुम रुक सकते हो, आइदर रुक सकते हो, नहीं तो जा सकते हो। हाँ, अपने हिंदी में भी आपने आइदर डाल दिया, बड़ा अच्छा है। हम हिंदी आजकल ऐसे बोलते हैं ना, हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं आजकल, ठीक है? तो हम लोग ऑफ कोर्स ऐसे बोलते हैं, तो या तो तुम रुक जाओ या फिर चले जाओ, बिल्कुल ठीक है। हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है, दैट्स परफेक्टली फाइन, राइट? ओके, नेक्स्ट वन, हु वांट्स टू ट्राई नीदर नॉर? एनीवन? अरबाज बताइए। ना वो तो अमीर है, नहीं वो फेमस है। God, what a problematic situation, right? He's neither rich nor famous. ना तो वो अमीर है ना ही वो फेमस है, कुछ एक तो होता वो, right? But ठीक है, poor him, but it's okay. We wish him all the best. Let's see. अंत में not only but also, I'll request Sarita to help us with this one. Sarita, can you help us with this one? Not only but also. She is not only smart but also hardworking. हाँ, Because if you are really hardworking. हाँ, ना केवल वो होशियार है, ना केवल वो स्मार्ट है, बल्कि वो मेहनती भी है, ठीक है? बल्कि, क्लियर है सभी को? परफेक्ट। ओके, और एक लास्ट टॉपिक है, उसके बाद जो रुबिना ने कहा था वो हम एक बार रन थ्रू कर लेंगे सारे मॉडल वर्ब्स। उससे पहले एक आखिरी टॉपिक बचता है, वो है इंटरजेक्शंस। सो
इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ये वो सारे साउंड्स हैं। किसी को पता है क्या होता है इंटरजेक्शंस? सर प्रीपोजिशन भी पढ़ा। सॉरी, बताइए क्या कह रहे हैं आप? सर प्रीपोजिशन भी होगा ना? preposition, I will just quickly do it for you, don't worry, I'll do preposition as well. आप बताइए कौन कौन से साउंड्स हैं जो आप लोग यूज कर सकते हैं, जो हम यूज करते हैं इंग्लिश के अंदर, और ये सारे एक इमोशन को दर्शाने के काम आते हैं। बताइए कौन कौन से हो सकते हैं? होम सर। या कौन कौन से हो सकते हैं? या I'll do the prepositions. Yeah, exactly. You can say hooray, you can say wow, oh no, दर्द हुआ तो ouch बोल दिया आपने, और क्या बोला बताइए? Hey, sorry, anyone? Allah. Okay, this one? This one? Helas? Yes, sir. Yes, Okay, okay, wonderful. What else? Right. So he loves. Yeah, so what does that mean? अरे आप बहुत ही जब पेन में होते हैं तो ये वो हम जो हिंदी में अरे अरे करके बोलते हैं ना, तो दैट्स द वन। सो अब देखिए ये क्या होता है एवरीवन, ये भाषा और कल्चर के हिसाब से बदलते हैं। आपको वो फील नहीं आता जब तक अरे नहीं बोलते हैं। तो कहीं अरे दिखा क्या आपको इसमें? नहीं दिखा। So the reason is when you learn English, you have to pick up their ways of expressing emotions, right? Arvaz, ये emotions हैं. These are emotions that you exhibit with the help of these words. That makes sense, Deepti? तो ये थोड़ा सा क्या कल्चरल चीज है। कल्चरल क्यों है अरबाज एंड दीप्ति एंड एवरीवन एल्स कृष्णमन्यु? बिकॉज द वे यू वुड हैव, जब आपको पेन होता है तो मान लीजिए कोई आपको एकदम चुटकी काटता है या कोई आपको पिंच करता है, तो आप जो ध्वनि निकालते हैं ना मुंह से, वो बहुत रीजनल होती है। हो सकता है कि सब लोगों के अपने अपने क्षेत्र में भी अलग अलग साउंड्स होते होंगे। मे बी इन कोलकाता, इन बंगाल वी डू इट डिफरेंटली, इन राजस्थान वी डू इट डिफरेंटली, so that is also something that we have to take into consideration. तो इंग्लिश में जनरली ये वाले साउंड्स होंगे, wow, oh no, hooray, ouch, hey, helas, right that way. So इसमें बहुत एक्सपेंस है, ये जो टॉपिक है बहुत ही ओपन है। इसमें कई बार आपको कॉन्ट्रडिक्शन भी मिलेगा कि सर पर मैं तो अरे बोलना चाहता हूँ, अरे यार, ओहो, अरे नहीं, राइट? ये जो सारे साउंड्स हैं वो अब आपको अंग्रेजी में इस रूप से मिलेंगे। सो यू विल वर्क ऑन देम। इज दैट ओके? राइट? तो इसमें हम प्रैक्टिस जहां जहां आपको ये शब्द मिले तब आप देखिएगा। एंड लास्ट टॉपिक, प्रीपोजिशंस। अगर आपको याद हो तो हमने थोड़ा सा इसको टच किया था जब हमने आपको सिखाया था ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। आपको याद है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है, सब्जेक्ट प्रोनाउन होता था और एक तरफ होता था ना वर्ब, और उसके इधर होता था ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। याद है? नहीं याद है? आय का क्या बनता है? हाँ, ही का, हिम, शी का, हर, इट का, इट, वी का, अस, और दे का, them. Perfect. So now you can be on mute. So I'll quickly help you to get through with the prepositions. अब जो preposition है इसका शब्द ही देख लीजिए सब लोग। पोजीशन से पहले आने वाला शब्द, राइट? आपको पोजीशन बताएगा वो कहां पे वो चीज स्थित है। सो ये हमें हेल्प करेगा preposition। और जनरली हम preposition ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के साथ काम में लेते हैं। जब भी मैं आपको prepositions बताऊंगा तो आप देखिएगा कि हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन काम में लेंगे एंड नॉट सब्जेक्ट प्रोनाउन। सब्जेक्ट प्रोनाउन काम में नहीं लेते, राइट? ये थोड़ा सा आइडिया देना था। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव टू से समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, व्हेन यू टॉक अबाउट इन द सेंस, आप जब बात करते हो रिलेशनशिप की या कॉम्बिनेशन की, तो उसके अंदर हम देख सकते हैं जैसे हम बात करते हैं ऑफ या फॉर। सो दिस इज फॉर हिम, राइट? इस तरीके से तो हमको हिम लगाना है। तो हम क्या करते हैं, हम preposition के अंदर हम लगाते हैं वो वाले कंपोनेंट जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में आते हैं। I'll do it in a detailed way.
मैं काम करता हूं, मैं आपको prepositions को टॉपिक वाइज करवाता हूं। पहला है preposition of place। पहला आएगा preposition of place, जगह। क्या क्या हो सकती है जगह? हम बात करेंगे in, on, very good, under, at, और बताइए behind, beneath, beneath, और बोलिए सॉरी मानसी क्या कह रहे हैं आप? above, 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 और बोलिए OFF, ऑफ। हाँ ऑफ हो सकता है रुबिना, ऑफ दूर। ओ नहीं नहीं, OF कैसे, वो प्लेस का कैसे होगा बताएं आप। बड़ा प्लेस में बोलते हैं तो ऑफिस नहीं मैं समझा नहीं कैसे। बाद में बोलेंगे। अच्छा नहीं, क्योंकि ऑफ जो है ना वो हमको रिलेशन वाला बताता है। दिस इज द बुक ऑफ द बॉय। आप समझ रहे हैं रुबिना, वो जो ऑफ है वो कनेक्शन बताता है, वो रिलेशनशिप बताता है, वहां पे आता है वो preposition, राइट। और इस तरीके से नहीं आता। फ्रंट ऑफ, हाँ इन फ्रंट ऑफ हो सकता है। आई थिंक माई वॉइस इज echoing like anything, so ये वाला ऑफ हो गया, इन फ्रंट ऑफ। और बताइए, सो ये सारी पोजिशंस है, राइट। बिटवीन, बिल्कुल ठीक है। और बोलिए अलोंग, अलोंग के साथ साथ, अलोंग, राइट, अलोंग। आई वॉकड अलोंग द रिवर, मैं रिवर जो थी नदी के साथ साथ चला। एग्जैक्टली, वेरी गुड। मैं कुछ आपको फटाफट से सेंटेंसेस बताता हूँ और फिर आप देखिएगा या नियर, फार, वेरी गुड। तो ये जो फार था ना वो नियर बाय, वेरी गुड। नियर के साथ हम बाय लगाते हैं और फायर के साथ ऑफ लगाते हैं। नियर बाय के समीप, फार ऑफ से दूर। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। परफेक्ट, ओके। सो मैं आपको बता रहा था इसके अंदर कुछ सेंटेंसेस, अब कुछ बेसिक से सेंटेंस देखते हैं ताकि हमें पता चल जाए। किताब जो है वो बैग में है, कौन बोल सकता है? या द बुक इज इन द बैग, ये तो आपको पता ही है। द बुक इज इन द बैग। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, इन जो है वो हमारा प्रीपोजिशन है। वो पोजीशन बता रहा है किस चीज की, किताब की, कि वो कहां पड़ी है, वो बैग के अंदर है। दैट्स व्हाई। यदि मुझे कहना है कि जो पेन है वो टेबल के ऊपर है, कैसे बोलूंगा? The pen is on the table. The pen is on the table, right? On के ऊपर, तो ध्यान रखना है हमारे को इस चीज का, right? इसी प्रकार से आप चेंज कर सकते हैं। You can put under and behind and between and whatever the position is. So that becomes preposition of place. Place के हिसाब से आपने इसको यूज किया। Second category that we have is, जो आ जाएगा वो है preposition of time. Time का preposition of time. Preposition of time. समय का कैसे हो सकता है बताइए? Any guesses? क्या क्या हो सकता है बताइए? हाँ, since, at, on, after, before। अब आप कहोगे सर ये after before तो भी जगह के लिए थे, ये ऐसे कैसे हो गया कि हमने इसके हिसाब से ले लिए? तो ये क्या हो जाएगा, ये समय का कंपोनेंट आएगा दीप्ति इसके बाद में। जैसे since yesterday I am unwell, मैं कल से बीमार हूं। since yesterday I am unwell। देख रहे हैं आपको दीप्ति, since अब यहाँ पे समय की दूरी बताता है, ठीक है। at, कितने बजे आना है? at 5 PM, समय हो गया। on Sunday, after noon, आफ्टरनून होता है ना, एक ही शब्द खैर, लेकिन या आफ्टर लंच, आफ्टरनून, आफ्टर लंच, यानी लंच के बाद। लंच एक समय है, लंच जो भोजन है उसके बाद, आफ्टर, तो वो हमें टाइम बताता है किस कब मिलेंगे। वी विल मीट आफ्टर लंच, वी विल मीट आफ्टर लंच। तो आफ्टर ने क्या किया, वो पोजीशन नहीं बताई, उसने समय बताया। आप समझ रहे हैं दीप्ति, एवरीवन, रुबिना, ये समय में कैसे चला गया? वहां पे वो आफ्टर और बिफोर जो था वो पोजीशन थी, यू नो।
कैन यू स्टैंड आफ्टर मी? क्या तुम मेरे पीछे खड़े हो सकते हो? कैन यू स्टैंड आफ्टर मी? कैन यू स्टैंड बिफोर मी? वो तो पोजीशन होगी, लेकिन समय के कॉन्टेक्स्ट में भी ये आ सकता है। और इसी प्रकार से बिफोर देख लेते हैं। वील मीट, हम मिलते हैं, वील मीट बिफोर, लेट्स से बिफोर डिनर, हम डिनर से पहले मिलेंगे। तो डिनर जो है वो कोई स्थान तो है नहीं, तो पोजीशन तो है नहीं, वो एक कंपोनेंट है। या मानसी, यू वांट टू से समथिंग? एंटिल का कैसे बनेगा? सॉरी, एंटिल का कैसे बनाएंगे? किसका बनाएंगे? until अनटिल, अनटिल तक, बिल्कुल ठीक है, अनटिल। यू वेट फॉर मी अनटिल आई कम। तो तुम अनटिल तक, हिंदी में बोलते हैं तक, तो मेरी प्रतीक्षा करना जब तक मैं ना आऊं। हिंदी में बोलते हैं जब तक मैं ना आऊं, लेकिन इंग्लिश में बोलेंगे अनटिल आई कम। तो अनटिल यानी वो जो समय है, प्रतीक्षा करना, अनटिल आई कम। यू गॉट द पॉइंट? अनटिल आई कम। सो अनटिल यहां पे हमें बता रहा है कि इस क्षण तक, तक जो तक है वो भी तो समय बता रहा है ना, इतनी ड्यूरेशन के हिसाब से। एंड इन, अगेन समय की ड्यूरेशन बताता है। इन में हम यूज कर सकते हैं we'll go there in the morning, हम सुबह में जाएंगे वहां पे। तो मैंने I back in the morning. या एग्जैक्टली। तो ये है prepositions of time। क्लियर हुए सभी को? राइट? यस और नो? राइट? ओके, नेक्स्ट इज prepositions। परफेक्ट। अगला है prepositions of directions। दिशा बताएगा हमारे को। देखिए सभी अलग अलग हैं। पहले वाले ने हमारे को पोजीशन बताई थी यानी प्लेस, दूसरे वाले हमें समय बताया, तीसरा हमें दिशा बताएगा। दिशा में बताइए क्या क्या हो सकता है? Left, right. ऑन द राइट, ऑन द लेफ्ट, राइट लेफ्ट, बिल्कुल ठीक है। और बताइए टूवर्ड्स, टूवर्ड्स बिल्कुल ठीक है। इनटू, आउट ऑफ, सॉरी अक्रॉस, हाँ अक्रॉस। क्या कह रहे हैं बरबास? Sir, behind. नहीं, अभी अभी दीप्ति हम चले गए, हम प्लेस में चले गए। अभी हम प्लेस में चले गए। आपने जैसे बोला बिहाइंड, तो पीछे स्थान है, वो कहाँ खड़ा है? वो पीछे खड़ा है, तो बिहाइंड हो गया, वो प्लेस हो गया दीप्ति। हम दिशा, 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 राइट? बिहाइंड, बिहाइंड में आप दिशा कैसे बता सकते हैं? अगर बता सकते हैं तो ठीक है, क्योंकि देखिए, ऑलराइट, ओके, यू वांट टू से समथिंग अरबाज? If not, then please be on mute, everyone. Yeah, be on mute. There's a lot of echo. Okay, so मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप डायरेक्शन के हिसाब से कर सकते हैं. So she is going to the market. She is going to the market. अब ये जो टू है ना, ये हमारे को डायरेक्शन बता रहा है किधर जा रही है, मार्केट की ओर जा रही है, मार्केट जा रही है। टूवर्ड्स भी उस दिशा को बताता है। ऑन द राइट, ऑन द लेफ्ट हम मूव करेंगे। इनके साथ हमारे पास एक मूवमेंट वाला एक्शन वर्ब होना चाहिए, तब इसका मतलब होगा, वरना ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा पोजीशन वाला, प्लेस वाला। तो प्लेस नहीं है, ये है। सो आई टर्न्ड ऑन द राइट, आई टर्न्ड ऑन द लेफ्ट। तो टर्निंग वाली क्रिया काम में लेनी है, तब जाके ये बनेगा हमारा डायरेक्शन वाला, अन्यथा ये प्लेस वाला बन जाएगा, राइट? इनटू, आई ड्रॉप्ड द बॉल इनटू द बैग, बैग के अंदर। आउट ऑफ, वहां से निकलना, राइट? कहीं से। सो द वाटर केम आउट ऑफ द टैप, द वाटर केम आउट ऑफ द टैप। एंड अक्रॉस, अक्रॉस, अब जो रुबीना ने कहा ना, अक्रॉस होता है ऑपोजिट, अक्रॉस, क्रॉस करना। तो इसमें अगर ये स्टैटिक है, अगर दीप्ति ये पोजीशन रुकी हुई है, तब तो ये हो जाएगा रुबीना, तभी हो जाएगा preposition of place, right? She was standing across my car, वो वहां खड़ी थी, ठीक है? लेकिन अगर आपने इसको मूवमेंट के साथ डाला, अगर आपने इसको मूवमेंट के साथ डाला रुबीना, तब ये बनेगा आपका preposition of direction. I walked across the path,
आई वॉक अक्रॉस द पाथ, मैंने वो जो पाथ था उसको क्रॉस करके मैं उस तरफ गई। क्लियर है सभी को, समझ में आ रहा है? तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको ये नहीं सोचना कि एक प्रीपोजिशन सिर्फ एक ही जगह काम में आता है, ऐसा नहीं है। उसका सेंस क्या है, कहना क्या चाह रहे हैं। वो स्टैटिक है, रुका हुआ है तो प्लेस हो गया, वो समय बताता है तो टाइम हो गया, वो दिशा बताता है डायरेक्शन, और देखिएगा डायरेक्शन में हमेशा कोई ना कोई मूवमेंट होगा, जाना आना, क्रॉस करना, गिरना, निकलना, तभी तो मूवमेंट होगा, तभी तो दिशा आएगी, वरना तो स्टैटिक में, रुके हुए में कभी दिशा नहीं आती। ठीक है, और आखिरी एक और है हमारे पास, वो है prepositions ऑफ रिलेशनशिप्स। preposition ऑफ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप का देखो उनके बीच में क्या कनेक्शन है, देख लेते हैं। पहला हो जाएगा इसके अंदर ऑफ विद अबाउट, 3 इसमें चलते हैं, ऑफ विद, और फिर आप अगर खूब सारे और रिलेशन कंटिन्यू कर सकते हैं उन सेंटेंस में तो इट विल मेक सेंस। जैसे एक हो गया, ही इज द फादर ऑफ 2 चिल्ड्रन, he is the father of 2 children, वो 2 बच्चों का पिता है, राइट? तो ऑफ क्या है, यहाँ पे संबंध बता रहा है कि वो 2 बच्चों का पिता है। सो दैट ऑफ कम्स एज अ preposition for relationship. She went to the movie with her friends. She went to the movie, वो मूवी देखने गई किसके साथ? With her friends. समझ आता है आपको? के साथ, के साथ एक कनेक्शन है तो ऑफ कोर्स वो रिलेशनशिप है। और अंत में अबाउट, वी टॉक्ड अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट, अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट, हमने नए प्रोजेक्ट के बारे में बात करी। सो के बारे में, के साथ, का, के, ये सारे जो शब्द हिंदी में लगता है ना, इसको लिस्ट नहीं बनाएंगे हम, ये सारे ऐसे का के वाली लिस्ट नहीं है। सिंपल सी बात है कि ही इज द फादर ऑफ 2 चिल्ड्रन, वो 2 बच्चों का पिता है। शी वेंट टू द मूवी विद हर फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने गई। और अंत में वी टॉक्ड अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट, हमने नए प्रोजेक्ट के बारे में बात करी। तो ये सारे संबंध बता रहे हैं हमारे सेंटेंसेस के अंदर। क्लियर है सभी को? अरबा, सरिता, इज दैट ओके? कृष्णमन्यु, राइट? इसके अलावा with, about, वो अब आपको कैटेगराइज करना है। ये मुख्य 4 मैंने श्रेणी बता दी। अब जो भी शब्द आपके दिमाग में आता है, आप अपने आप से प्रश्न उठाइए, क्या ये स्टैटिक है तो प्लेस में चला जाएगा, क्या ये समय सारणी में जा रहा है तो ये टाइम में चला जाएगा, ये कोई दिशा में जा रहा है तो ये डायरेक्शन में चला जाएगा, ये कोई 2 चीजों के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है तो ये प्रीपोजिशन ऑफ रिलेशनशिप हो जाएगा। तो लिस्ट ऐसे कोई फिक्स नहीं है कि हमको सारी लिस्ट मतलब याद भी होगी या करनी है, वो तो जिस कैटेगरी का आपको यूज करना है वो आप यूज कर सकते हैं इंटरचेंजेबली। क्लियर है आपको? या साक्षी, साक्षी वांट टू से समथिंग? यस इसमें लास्ट वाले में द का यूज किस लिए हुआ है? कौन सा वाला? लास्ट वी टॉक अबाउट द होल न्यू प्रोजेक्ट, अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट, नए प्रोजेक्ट के बारे में, अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट, वो बहुत स्पेसिफिक है ना, डेफिनेट आर्टिकल है, जो नया प्रोजेक्ट है उसके बारे में, अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट, इसलिए, राइट? रुबीना, यू वांट टू से समथिंग? सर मैं सबसे जो क्वेश्चन किया ना उसका आंसर देना चाह रही हूँ। हाँ हाँ बताइए। सर आपको बोल दिया ना? तो कोई बात नहीं, बता दीजिए आप भी। सर वही मैं बोलना चाह रही थी, जो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के बारे में बोल रहा है ना, जो न्यू प्रोजेक्ट आ एग्जैक्टली, द लगा है, एब्सोल्युटली। कोई भी जनरल होता तो अ न्यू प्रोजेक्ट, एक नया प्रोजेक्ट, कोई भी, लेकिन वो नया प्रोजेक्ट जिसकी हमने बात करी। ओके, so with that we'll quickly move ahead, and I think Rubina had a little she wanted some clarity on modal verbs, तो फटाफट से modal verbs देख लें एक बार, या सबको याद है? अब पूछूंगा मैं। modal verbs पढ़ा आपने थोड़ा बहुत? रुबीना एंड एवरीवन, टाइम मिला आपको modal verbs पढ़ने का? नो सर, प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए। एक बार रिपीट कर दीजिए। मैं बिल्कुल कर देता हूँ, पहले आप बताइए आपने रिपीट किया नहीं किया? सर मैंने पढ़ा है। हाँ पढ़ा है तो समझ में आ गया होगा आपको modal verbs। चलिए हाँ, समझ में आ गया। ओके, फिर भी समझा देता हूं मैं। पहला है हमारे पास कैन, स्पीड से चलेंगे, थोड़ी सी स्पीड लेंगे। दूसरा है हमारे पास कुड, याद है सारे मॉडल वर्ब। तीसरा हम लेंगे शैल। देखिए बिल्कुल नट शेल में चलेंगे ना, नट शेल मतलब संक्षिप्त में चलते हैं, बिकॉज आई एम श्योर इसका वीडियो भी आप देख लीजिएगा। सो कैन हमें 3 संभावनाएं बताता है। पहली है एबिलिटी, एबिलिटी मैं क्या कर सकता हूं। दूसरी हमें ये बताता है परमिशन, हमें परमिशन
और तीसरी हमें देता है ये पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी की कोई चीज की संभावना है या नहीं है। 3 उदाहरण हम देख लेते हैं। पहला उदाहरण एबिलिटी, आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूं, मैं तैर सकती हूं, ये हो जाएगी मेरी कर पाने की क्षमता, मैं उसको कर सकता हूं, कर पाता हूं। दूसरा है परमिशन दे रहा हूं, यू कैन गो नाउ, तुम जा सकते हो, यू कैन गो नाउ, ये उसकी क्षमता थोड़ी कि वो जा सकता है, ये तो मैं परमिशन दे रहा हूं। और तीसरा है इट कैन रेन लेटर, बारिश हो सकती है, इट कैन रेन लेटर। यहां तक क्लियर है सभी को? एवरीवन टेल मी, समझ में आ रहा है? रुबिना, अरबाज, समझ में आ रहा है सभी को? ध्यान रखिएगा। अब कुड में चलते हैं। ये हमारा दुश्मन, याद है आपको कुड कितना परेशान किया था इसने हमारे को? याद है, नहीं याद है? ओके, तो पहला पास्ट, पास्ट की एबिलिटी, पास्ट की एबिलिटी, हम पास्ट में क्या कर पाते थे। दूसरा ये हमें बताता है पोलाइट रिक्वेस्ट, एक निवेदन, पोलाइट रिक्वेस्ट, ठीक है, वो भी कर लेंगे। और तीसरा ये हमें बताता है क्या चीज है, वो है हमारे पास पॉसिबिलिटी, एक संभावना इसमें भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी, राइट। तो पास्ट एबिलिटी, मैं क्या कर पाता था, क्या कर सकता था। आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वाज यंग, आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वाज यंग। क्या मतलब है इस वाक्य का, कोई बता सकता है हिंदी में? अरे 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 अरे, चलिए इतना अच्छा बोला कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो दीप्ति आप बताइए अनम्यूट करके। दीप्ति, सर मैं जब यंग था तब मैं बहुत फास्ट दौड़ता था। दौड़ता था या दौड़ पाता था? दौड़ पाता। हाँ, अब देखिए जो जो दीप्ति ने कहा वो सही है, क्योंकि ऐसे कोई बोलता ही नहीं है मैं दौड़ता था, लेकिन असलियत में क्या है रुबिना, मैं दौड़ पाता था, मैं दौड़ पाती थी, मैं दौड़ सकता था, मैं दौड़ सकती थी। ठीक है, या अरबाज, यू वांट टू से समथिंग? कुछ कहना है अरबाज आपको? I want to give answer. You want to give? And I didn't get you, Arvaz. You were saying something? You want to give an example? समझ में आ गया आपको? Yes, sir. ठीक है, इट, अब देखिए और पोलाइट, कुड यू हेल्प मी, हमने सीखा था सबसे पहली क्लास में, कैन नहीं कुड काम मिलेंगे, याद है आपको साक्षी, एवरीवन? कुड कुड कुड, कुड यू हेल्प मी, तो ये निवेदन के लिए भी आपको कुड काम में लेना होता है रुबिना। और अंत में जब आप एक पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, इट कुड रेन टुमारो, इट कुड रेन टुमारो, राइट, इट कुड रेन टुमारो। आगे शैल हम देखते यहाँ हैं। पे मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बताइए। Sir, when I will use can possibility and when I use could for the possibility. राइट, मतलब so जब ये test करेंगे तब use करेंगे। अब देखिए इट कैन रेन लेटर एंड इट कुड रेन टुमारो में फर्क क्या है। लेटर है थोड़े समय बाद, कैन आपकी पॉसिबिलिटी को थोड़ा सा श्योरिटी देता है, कुड और कम श्योरिटी देता है। ठीक है, बादल अब छा चुके हैं, आपको लग रहा है कि बारिश हो सकती है, तो आप ये इट कैन रेन लेटर। और आप लेटर क्यों बोल रहे हो रुबिना? क्योंकि लेटर मतलब आपको दिख रहा है, लेकिन कल का तो नहीं दिख रहा ना आपको, तो उसमें संभावना कम हो गई। डज दैट मेक सेंस? क्लियर है? तो बस इतना सा फर्क है। देखिए इन शब्दों से भी रुबिना क्लियर हो जाएगा। लेटर मतलब थोड़ी देर बाद, यानी दिख रहा है बादल छा रहे हैं और बिजली कड़क रही है, तो बारिश हो सकती है, इट कैन रेन। हाँ मतलब अभी बिजली नहीं कड़क रही है, लेकिन लग रहा है कि होने वाली है, हो सकती है, तो इट कैन रेन लेटर। लेटर शब्द करेंगे काम में, लेकिन कल की बात है तो अभी मैं श्योर ज्यादा नहीं हूं, तो इट कुड रेन टुमारो, दैट वे। या साक्षी? यस सर, कैन हम प्रेजेंट में यूज कर सकते हैं, जैसे कोई भी काम चल रहा है, और हाँ। कुड या कुडंट हम पास्ट टेंस ऑफ में यूज कर सकते हैं, फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ओके, जो शैल है वो एक ओल्ड वे होता है विल का, जो बहुत कम काम में आता है, और शैल जनरली आई और वी के साथ ही हम काम में लेते हैं। एक गाना था बड़ा फेमस, वी शैल ओवरकम, सुना है आपने कभी? वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम, राइट? वी शैल ओवरकम यानी हम सभी समस्याओं से निजात पा जाएंगे, हम उनसे उनको हम टैकल कर लेंगे, सो वी शैल ओवरकम। सो ऐसा नहीं कि गलत है ही शैल, यू शैल,
और दे शैल, लेकिन जनरली आई एंड वी में चलता है शैल। मतलब अगर अच्छी अंग्रेजी में आप समझना चाहें तो इसमें मैं 2 वाक्य बताता हूँ। आई शैल रिटर्न सून, ये बड़ा फॉर्मल तरीका है। सो इसका जो रीजन है वो हो जाता है एक फ्यूचर के अंदर यूज करना और एक ऑफर्स के अंदर। फ्यूचर में अपनी बात कहना, तो पहला हो गया फ्यूचर, और एक होता है आप ऑफर्स दे रहे हो किसी को, रिक्वेस्ट, यू नो, आप किसी को एक ऑफर दे रहे हो। सो फ्यूचर के अंदर हम क्या कहेंगे, एक हम सेंटेंस लेते हैं, आई शैल रिटर्न सून, मैं जल्द लौट के आऊंगा। आई शैल रिटर्न सून। अब आप ये भी कह सकते हो इसके अंदर, हमने ये क्यों नहीं बोला आई विल रिटर्न सून। आई शैल थोड़ा सा फॉर्मल तरीका होता है, बड़ा फॉर्मल तरीका है। जो लोग शैल अभी भी काम में लेते हैं अंग्रेजी में, वो उन्होंने बड़ी फॉर्मेलिटीज सीखी हैं लाइफ में। सो इस तरीके से हम देखते हैं। आप चाहो तो आई विल भी बोल सकते हो, बट ये फॉर्मल तरीका है शैल, राइट। और ऑफर आप देना चाह रहे हो किसी को, शैल आई ओपन द विंडो, क्या मैं खिड़की खोल दूं। शैल आई ओपन द विंडो, क्या मैं खिड़की खोल दूं, ये इस प्रकार से होगा। तो आप प्रश्न पूछो, पर आप शैल से पूछ रहे हो, जिसके अंदर आप उस व्यक्ति को एक मौका दे रहे हो जवाब देने का, लेकिन आप शैल से पूछ रहे हो, बड़ा फॉर्मल तरीका है। तो शैल फॉर्मेलिटी दर्शाता है। क्लियर है सभी को? अरबाज, इज इट ओके? सरिता, कृष्णमन्यु, Yes. राइट, ये आप ध्यान रखिएगा। तो आज के जमाने में यदि आपने शैल बोल दिया तो जो सच में अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं उनके कान खड़े हो जाएंगे, अरे शैल बोला कुछ जरूर, यू नो। सो आई शैल कम। तो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग वन। ओके, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। आप लोगों की स्टोरी का तो टाइम ही नहीं आ पाएगा आज। तो मेरे से आपने ऐसा सवाल पूछ लिया रुबिना, आई हैव टू जस्ट क्विकली रश हियर एंड देयर। फटाफट से सब लोग लिख के लाए अपनी कहानी, या प्लानिंग तो नहीं कर ली आप लोगों ने कि सर को आज है ना, सबने लिखा है? ठीक है, कि सर को आज बिजी कर देते हैं और सर पूछ नहीं पाएंगे। फटाफट से शुड, या आपको कोई स्पेसिफिक कोई पॉइंट है रुबिना, आई मीन या सारे समझना चाह रहे हैं? मुझे आप बता दीजिए जैसे भी आपको ठीक लगे। शुड है, मुझे मुझे जब उसके साथ जो वर्ड था ना, वो वर्ड मैं कौन सा यूज कर रही थी, तो मैंने पढ़ा तो मुझे समझ में आ गया। ओ तो अभी मुझे सर आप ये तो दिए वो विल बी के साथ तो प्लीज लगाते हैं, मस्ट बी के साथ प्लीज ये क्यों लगाते हैं? व्हिच वन? मस्ट बी, मस्ट बी प्रोटेक्टेड, मतलब यहाँ पे तो प्लीज मतलब बात का साथ कौन लगाते हैं ना, और अगर यू मस्ट गो, नहीं आप जानते हैं इट मस्ट बी प्रोटेक्टेड। तो जब बी लगता है ना रुबिना, तो उसके अंदर हम पैसिव वॉइस में बात कर रहे हैं, इस वजह से। सो एक काम करते हैं, रुबिना का एक पॉइंट है। रुबिना ने कहा, इसको भी होल्ड पे इसलिए डालते हैं क्योंकि ये टॉपिक आपने लार्जली देख लिया है, फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। लेकिन एक पॉइंट उठाया रुबिना ने कि इट मस्ट बी प्रोटेक्टेड, इट मस्ट बी प्रोटेक्टेड। वो ये कहना चाह रही है कि प्रोटेक्टेड जो है, इट मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय देम। ठीक है, अब ये एक्टिव और पैसिव है, हमने पढ़ा है ना एक्टिव पैसिव, याद है आप लोगों को? उसमें हमने हाँ, मॉडल वर्ब्स में हमेशा ध्यान रखिएगा, मॉडल वर्ब्स जब भी काम मिलेंगे उनमें बी लगता है। इट कैन बी, इट मस्ट बी, राइट, इट शुड बी। तो बी के साथ हम पैसिव बनाते हैं, और एक्टिव क्या हो जाएगा? दे मस्ट प्रोटेक्ट इट। वेरी गुड, दे मस्ट प्रोटेक्ट इट। तो मॉडल वर्ब से हमेशा ध्यान रखिएगा कि वही मॉडल वर्ब काम में आएगा, उसी फॉर्म में आएगा। कैन का कैन, मस्ट का मस्ट, विल का विल, कोई चेंज नहीं, बस बी लग जाएगा। राइट, क्लियर है? ओके सर, देन चलिए, वंडरफुल। सो नाउ वील मूव अहेड विद द स्टोरी टाइम, एंड आई आल्सो हैड लॉट ऑफ एक्टिविटीज फॉर यू, बट देन नेवरदलेस कोई बात नहीं, हम उसको कभी और देखेंगे। एंड आई विल शेयर दिस डॉक्यूमेंट, इसमें एंड में आपको वो स्टोरी कंस्ट्रक्शन वगैरह सब मिल जाएगा। अब मैं आपकी स्टोरी सुनना चाहूंगा अंग्रेजी के अंदर रिलैक्स्ड मोड में। चलिए, सो हु इज गोइंग टू स्टार्ट? रेज योर हैंड्स, देखते हैं कौन अपनी कहानी सुनाएगा मुझे उन 20 शब्दों के साथ। तो सबसे पहले दीप्ति ने हाथ रेज किया, सो वील लिसन टू दीप्ति स्टोरी। या दीप्ति, ओवर टू यू। Once upon a time, a cat lived in a village house. Its name was Tom. Tom played with birds daily. Right. Tom wore a T-shirt which had a logo of fire Okay. on it, and it looked like a king in that T-shirt. Tom
drank milk with bottle regularly. ड्रंक बोला आपने या ड्रिंक बोला या ड्रिंक्स बोला? Drank, D-R-A-N-K. देखिए, जब आप रेगुलरली शब्द काम में लेंगे, एक बार म्यूट कीजिएगा प्लीज दीप्ति, मेरी आवाज एको कर रही है, आई कैन नॉट हियर माई सेल्फ एट ऑल. सो जब आप रेगुलरली शब्द काम में लेते हैं ना, तो वो रोजाना होता है, तो उसमें आपको सिंपल प्रेजेंट काम में लेना होता है. सो टॉम ड्रिंक्स मिल्क रेगुलरली. टॉम रोजाना दूध पीता है. Okay. Whenever Tom had any problem, Tom's mother used to help him. Hmm. Tom, uh, Tom's mother went her on her office. They saw a picture of a sandwich on the laptop via internet. Okay. Thank you. All right. So that was a great effort. Yeah, you're saying something, Deepti? No, sir. Okay. So, bravo, it was a great effort. I could see you could put in all the words together to make a beautiful story out of it. Wonderful, bravo. Okay, next we see Rubina. Rubina, over to you. In a far away, a village hidden deep within a magical forest, there was a mysterious old house Mhm. that everyone in the town spoke of with wonder. Mhm. The house belonged to a young girl named Ilara, who lived there with her cat, Sadu. Sadu wasn't an ordinary cat. He could speak perfect English, but only under the light of the full moon. Right. One when the moon was at its highest, Sadu turned to Ilara and said, "We have a big problem. The magical king of the forest has gone missing, Mm. and his absence is the only cause of the forest to fail. The birds have the birds have stopped chirping. The grass is turning brown, and soon the entire village will be in danger." Hmm. Ilara, wide-eyed, Ilara, wide-eyed with surprise and asked, "What can we do to help?" Mhm. Santa, with his glowing eyes, replied, "We need to find the king's name first and speak it under the moonlight." But he went outside the. "We must leave immediately." Ilara, including a bottle of magical milk, a sandwich for the journey, and her laptop. They need to look up more clues on the internet. She also grabbed her favorite T-shirt, with which the symbol Anisian forest on it, hoping that it would bring her luck. As they entered deeper to the woods, they encountered several strange challenges. Mhm. First, a fire blocked their paths that cleverly knocked over the bottle of milk there, the pickled milk, Mhm. which instantly put the fire. Next, they had found a proper piece of thick magical grass that trapped anyone who walked on it. Elena used her mother to carefully tiptoe through, and Shadow followed them fully behind. Finally, they reached the
rooms. There, on an old stone tablet, Hmm. they saw faint markings there. Milena opened her laptop and used the internet to search the Anisian symbol. After an hour, they found the name of the king, Arian. With the moon now shining brightly above them, they stood in the center throne. Elena spoke loudly the name of the king, Arian. This instant, the room lit up, and the king appeared before, glowing with a golden light, Uh-huh. and said, "You have freed me. I owe you both my deepest thanks." Mhm. After the village returned to life, the birds began to sing. Uh-huh. The grass turned to green again. Once again, the forest became vibrant and magical. As a reward, the king granted to Lera and Sato the ability call call her when they face danger in their life afterward. From that day, the Ilera and Sato become known as the protector of the village, and everyone recalls them with the honor. Thank you, sir. All right, beautiful, wonderful. I think it was a very interesting story. You started about the fact that something that turns dried and it's all pale and there's no energy, no magic left anymore. And with all the adventures that they go through, in the end, the grass starts to turn green and there's magic that comes back to the forest. So I think that was beautiful. We were actually traveling with you. You know what happens? जब आप कोई कहानी सुनाते हैं, you catch the attention of the other people and वो साथ में travel करते हैं. तो जैसे दीप्ति ने कहा वो टॉम वाली कहानी सुनाई, तो हम इमेजिन करने लगते हैं वो हमारे आंखों के सामने है. That is the power of storytelling. That's very important. I think just one little suggestion for you, Rubin. I think in the end आपने कहा become so and so become. I think it should be became. Yes. Right, became, because past, simple past में जाना. Perfect. Great. A lot of hard work I can see that you've put in, Rubina. Bravo. All right. Anyone else would like to share? Great. Pleasure is all ours. Anyone else? Arvaz, have you made your story? Arvaz, have you done yours? Sir, Sorry, you have made yours? no, sir, I wrote not. Oh, why did not you write a story? Huh? Chali. I am prepared for interview. You're preparing for an interview. Okay. And when is it scheduled? Is it in the coming days? Yes, sir. Okay. Tomorrow. Oh, tomorrow. We wish you all the very best. And I hope you get through your interview with flying colors. Let's see. Okay, I can quickly see two hands raised. So we just take two more people, and that's how it is. So it's Pranjal. Pranjal, over to you. A quick story. I was in my house because it is a weekend. I was enjoying my me time by watching some movies, eating popcorn and sweets. I was so relaxed because I did my whole pending work till yesterday. I was watching movie, but I heard something was broken in the kitchen. I I heard. flinched hard. I heard something. आपने heard बोला ना? HEARD. I heard. I heard Perfect. I heard something. that Yeah, carry on. I flinched hard. Hmm. I ran towards the kitchen. I saw that there was a cat who broken the glass bottle. Oh. I saw that the milk is on the floor. On the floor. Just a second. Yeah.
I think Pranjal got disconnected. Anyway, we'll carry on with Sarita. Sarita, over to you. Yes, sir. Yeah. Once upon a time, a little girl named Sia Hmm. loved with her parents. Sia had a cute cat, Yeah. had a cute pet cat and named it Flora. Uh-huh. Sia had a problem speaking English. Okay. Her mother also helped her to speak English. Hmm. One day, Sia's mother goes to office Yeah. and Sia's mother is late in coming. Hmm. She calls her together and says, I will be late. I have to put milk in a bottle Hmm. for Flora and sandwich for you. Eat up. After that, Sia and Flora go out for a walk wearing t-shirt. Okay. As soon as Sia come out, she says that the moon is looking very beautiful Hmm. in the garden like fire. After that, Sia and Flora move ahead. Sia tells Flora how beautiful this garden looks in this moonlight. Look here, what a beautiful birds this is. Look at its cute home. It is made of green grass. Hmm. Look, looking at these birds and its home, it seems that it is the king of all birds. And then both of them start coming towards home. Then Sia's mother comes and Sia's sorry. The internet was not working on my laptop. That's why I was late in coming. Now let's go home. Thank you. All right, wonderful. Thank you so much, Sarita. It was very interesting indeed. It was very precise, and there was some kind of an approach towards learning English. We could see that. Great. Before moving ahead with Pranjal's story, because she talked till this point of the milk was on the floor, we'll carry it on. But since it's our last day, I would really want, after a few minutes, when we'll say goodbye to everyone, and not a permanent goodbye, we are going to catch up each other somewhere in person or maybe in the online world. I would really want to take a screenshot, so be ready to put your cameras on because I want to see you. I have never seen some of you. For example, I don't know how would I meet Sakshi because I've never seen her. I don't know about Manshi either. So आप 2-4 मिनट में आप तैयार रहिएगा कि आपको कैमरा ऑन करना है and I'll take a quick picture because you know me. But what if I met you someday somewhere in your city and you came to me running, hey sir, I'm Sakshi, and I'm like, I don't know, but with your voice, I can feel you are Sakshi, but I've never seen you. So please ensure that you put your cameras on. Are you okay with that? You're comfortable putting your cameras on? One last time? Right, great. Yes, sir. Yeah, so after 5 minutes, I'll ask you all to put your cameras on. We'll take a last quick screenshot as a memory, as a souvenir. And I can see Rajeshwari joining in. Good evening, Rajeshwari. How are you doing? All well, Rajeshwari? You're doing fine? Hello, hello, sir. I'm doing not good. Not good? So good. Yeah. But you told that you would definitely join on the last day. So we are really thanking you, and we are happy that you could join. You could make this connection with us in the last. I really miss these classes, sir. No, I understand. But of course, we all can stay connected, and it's like a little family we'll have. So even after these classes are over, stay connected on the group because every now and then, whenever we do any activities which would suit you, perhaps you can always join us. We will also be looking ahead with how to prepare for interviews, for examinations, and other things. So stay connected, and every time, whenever we talk about Sunday English speaking series, you're most welcome for that. So we'll just quickly move. Sure, sir. Absolutely. We'll just quickly listen to. I want to say something, sir. All right. So what we'll do is that we'll just quickly listen to some people's story, and then we'll open the session for last quick interaction. Right, Rubina? Just few minutes. Right. Pranjal, over to you. Pranjal had a story to share. Pranjal. Yes, sir. Yeah. So I'll start from beginning. No, we had understood till the point that the milk was all around on the
floor. But something was not good. Mhm. That the cat was hurt by the piece of glass. I hold the cat and took her to put some medicine on Mm. her. Right. But when I was putting the medicine, her she was shaking. Mhm. I thought her she was scared. Told her and walked towards my garden. I sat on the grass and saw the glorious moon, and I feel so relaxed after putting the medicine on the cat. She was fine. All right. Great. The cat was fine in the end, Pranjal. So, Oh, that shows that you are an animal lover as well. Are you? yes, sir. Yeah, because when we write a story, we are ourselves into that story and we kind of share our own personality with everyone. Great. So I think we have come with the end of the storytelling portion. If at all you have any story to share, don't forget to share it in the group. You can always record your voice, send it across. We'll be more than happy to listen your voice as a recorded story. So wishing you all the very best for the story part of it. And now I open the session. You can put your cameras on, you can say something, you can share your experience, you have something to say, and then we'll wrap the session up today, and then we'll meet maybe sometime later in our lives. Oh, I can see Pranjal today. Great, great, wonderful. Such a pleasure to see everyone. Oh, I can see Sakshi for the first time today. Okay, wow. Such a wonderful, wonderful Pranjal and Sakshi. I've seen Rajeshwari ji, so I know her. Arvaz, I've seen you. I've seen Rubina. Deepti, I've seen you very less, so I don't know if we'll meet one day. We'll cross each other in Jaipur. Would I say hello to you? I don't know. Yeah, now I recall your face. Yeah, Rubina, I wanted to say something quickly. Yes, sir. I want to say that over the last 1 month, we are improving our English skill, English pronunciation base, like grammar. But sir, you are doing a wonderful job because in the like from my childhood, you did it like a 1 month, a magical like a magic. Because in the former childhood, I am trying to improve my English, but I didn't understand. Although I know the grammar, but I cannot put it and cannot speak. Mhm. Like when it doesn't come to the action. True. Only the knowledge is there, but it could come to the action. But you did it in like 1 month. 1 month we are doing these True, classes, but true. now I get knowledge and now I can use these things in the while I'm speaking. So you did a wonderful job, sir, and I was sometimes I regretted, oops, why I cannot get the same before in my life. Okay. When I was in the Madhyamik or HS, Madhyamik means in the West Bengal in the secondary exam. Right, right. Then I will be the topper if I will be the same. I really appreciate. No, no. I want to tell you something that when I was in the graduation, I got very poor marks in the first year because of this English. I couldn't understand because I get entry into the microbiology honors and the honors paper all in the English, and I was from the Bengali medium. Yes. So and the college itself, the lectures also in the English, so I couldn't catch all these things. Mhm. So in the first semester, I got terribly marks because of that. Uh-huh. Second semester, I covered all these things. But that time I was regretting why I cannot get the same before. Some things are planned for the right time. Your teaching method is very enhancing, very influencing. Thank you so much. Because all Thank the you. people are interacting with us by name, that's why it's very influencing, and I want to say you are the best. Oh, thank you so much. It means a lot to me. Sir. I thank to you, Rubina, and to everyone. I can personally take your names as well because you have really worked hard. And if I have put my energy, you have put equal amount of energy or more. And that's how we have come to this part of the journey today that you are saying such beautiful words to me.
it's a mutual process. I can never do it if you don't support me, if you don't do the same work that I do for you. So it's a mutual thing. And But sir, your knowledge, your tactics, your teaching strategy is awesome. oh, thank you so It's much. awesome. Thank you. Thank you. We learn it from people, you know, it's the kind of ambience I've got, the experience that I've got because of people around me. They help me to strengthen my understanding, and the same I want to foster with other people. I want to pass it on to you. Maybe tomorrow, if you would be taking some English lectures here and there, you can always take up the same strategies and you can do the same way or a better way than what I do. So I'm sure it would help you. And when you, Sir, I'm going to miss these classes. so would because I. I feel that we are in a family. We are True. we in a family like Absolutely, one mom. absolutely. It is indeed So a I'm family. going to It is class. indeed a family. And whenever you come to Jaipur, all of you, and you just ping me, just let me know. We'll catch up somewhere because to meet you in person is going to be a great experience altogether. And to talk to you in English, absolutely. I would not miss out on that part. And just coming quickly back to the point that Rubina says, "Pehle kyun nahi hua ye cheez?" So some things are meant to happen at a certain time. So it has to happen this way this time. So it is happening this time. So we should thank the Almighty that it happened, and it happened in a beautiful way. And we'll cherish this moment all throughout our life. So I think that is something that as we mature, we understand these things in a better way. So thank you, everyone. And I'll just take a quick screenshot before we wrap up. Just a second, because when I take a screenshot, I'll have to move, and I cannot be seen in the whole frame. But that's not a problem. I'll just take a screenshot. What about Sarita? You haven't put your camera on. Sarita, oh yeah, we can see Sarita. You would not want to have your face seen. Okay, she's a little camera shy. Perfect. Not a problem. It's a personal thing, so not a problem at all. All right, I've just taken one. Let me see if I'm able to paste it. It's something that will stay with us, this picture. It won't go here and there, so you need not worry. All right, I've tried sharing it in my WhatsApp. Right. Okay, great. So I've done it, and I would personally take each one's name: Rubina, Rajeshwari, Arvaz, Deepti, Krishmanyu, Manshi, Priyanka, Rajeshwari, Rubina. Again, I've taken your name, Rajeshwari, Sakshi, Saida. You all have done a commendable job, and even today. Arna hasn't joined, but she was there. There were other people as well who couldn't join. So everyone, you have put your hard work into this whole process, and that's why it has come out so beautifully. And believe me, you all have really worked day in and day out. I did see it for so many learners. Yeah, Pranjal was also there. So everyone has really worked very hard for it, and slowly and steadily we'll win the race. It is not a competition with other people, it's with ourselves. We have to be our better version every next day. When I wake up in the morning, I should say, today I will be better than what I was yesterday. Tomorrow I will be better from what I am today. So this kind of an approach we should have in our lives, and we should move ahead. In this whole span of my existence, if I can be of any use to you in English or otherwise, please do let me know. And if anyone has to say anything, you can quickly unmute and tell, and otherwise we'll just wrap it up. All right. So yeah. Sorry, I can't speak too much today, but I'm totally agree with Rubina. Uh-huh. Even I think, where were you earlier? I was here on the same planet. I was here. I was working for you people. I was preparing myself, Rubina, to be a better teacher. Had you met me before, perhaps, had you met me before, I wouldn't have done the same way. So I was taking my set of experience. I was enhancing myself to be prepared for Deepti, for Rubina, for Arvaz, for Rajeshwari, for Sakshi, for everyone else. I was preparing myself. So that was the time. And God said, Abhi aap jao and train them. So that's how I was sent, right? Yeah. So, Perfect. really, you are wonderful. Your way of teaching is different and easy. So it was very grateful to us to learn with you. True. And in future, of course, I will sure connect with you to Absolutely. join some Absolutely. classes. Absolutely. But right now, I'm not able to. No, no, because no. Now, Take care I of have to yourself. focus on my German B1 level. Yeah. So No, no, not a problem at So- all. My best wishes to you, and in the course of English, any way you have any questions, any doubt, drop a message to me with your name, and I'm there to respond to you. And even if you want my support in your academic process or your professional life, do reach out to me. I'm there to help you for that. Thank you so So once Thank you so again, much, my sir. best wishes to you, and thank you for being a part of this beautiful journey. And I wish you all the best in your spoken English journey and your personal life, and as well as your professional life. Keep shining as stars, and best wishes to you. Thank you so much. Take care. And whenever you Thank you so are much, sir.
come to whenever you plan to come to Switzerland. We are happy to host you, sir. Thank you so much, Rajeshwari. That means a lot to me. And whenever you come down to Jaipur, anyone for that matter, do drop a message to me. We'll catch up. Thank you, sir. All right. Thank you so much. Thank you, everyone. Arbaz, thank you, Sakshi. Take care. All the best. Thank you, Manshi. I can see Manshi now. All the best, Manshi. Take care. Sarita, all the best. Take care. Thank you, Pranjal. Take care. All the best. All the best, Rubina. And Deepti, all the best to you as well. Take care. Bye bye. Thank you, sir. Thank you, Deepti. Thank you. Take care. Thank you, sir. Thank you, Manshi. Take care. Thank you, Krishmanyu. Thank you, sir. Yeah, Krishna, you did not put your camera on. I thought of taking a picture with you as well. Yes, I did. Okay, great. I'll just quickly take one little one for us as well. Just a second. Right. Yeah, I can just take one. All right, great. Yeah, I see you there. All right, perfect. Thank you, Krishmanyu. Yeah, thank you, Sarita. Take care, Rubina. All the best for your PhD work, Rubina, and don't be under stress at all.